Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. Presently we are on the chapter of rotational dynamics, and I have already given you that the position of center of mass and how to locate the position of center of mass of a single body, group of bodies, irregular bodies, variable density bodies. We have been able to locate the center of mass of different mass distributions. Now today's lecture is on how to find the velocity of center of mass. There are a group of bodies and they do have a center of mass somewhere. If all the bodies or some bodies or a few bodies are moving, then obviously center of mass also will move. तो हमें देखना है कि इस center of mass का velocity क्या होगा given the velocities of other different bodies. So that is the question. Velocity of center of mass. Velocity, okay, both velocity and acceleration. I will do both together. Acceleration of center of mass of a group of bodies. Group of bodies. ये है हमारा क्वेश्चन. इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. कैसे हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उसका कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. चलिए, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है बिकॉज एवरीथिंग वी डू इन रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये z एक्सिस है और ये बॉडीज है, डिफरेंट बॉडीज. मास डिफरेंट है, and they have coordinates, radius vectors r1, similarly r2 इसका, r3 इसका, r4 इसका, r5 इसका. और इन सब बॉडीज का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा cm. ये होगा इनका सेंटर ऑफ मास. हम ये निकालना चाहते हैं अगर ये बॉडीज जो हमारे हैं, अगर इनका वेलोसिटी दिया हुआ है, दिस इज मूविंग, दिस इज मूविंग, दिस इज मूविंग, इट मे इवन बी एट रेस्ट, doesn't matter, they're different bodies, all of the bodies are moving or some of the bodies may be moving. तो उस सूरत में ये सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है. हमें देखना है सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी है. If we know the velocities of other individual bodies, that's all. So let me do a little bit of mathematics with it. We know the position of center of mass. This is a position of center of mass. There is m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus so on divided by total mass m1 plus m2. Let me write capital M for that. This is the position of center of mass of a group of bodies. Given, what is given? Mass of the individual bodies are given and their position vectors are also given, or their coordinates are also given. And if position vector is given, that means coordinates are given. Right? Now, if I differentiate this, differentiating both sides. Both sides. What we get? We get what we are going to get by differentiating this equation. It is drcm by dt is equal to, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं. अगर डिफरेंशिएशन होगा वो r इस रेडियस वेक्टर का होगा, इस रेडियस वेक्टर का होगा. रेडियस वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता रहेगा, लेकिन मास तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रहने दो. सो इट इज m1, इसका डिफरेंशिएशन dr1 by dt प्लस m2 डिफरेंशिएशन ऑफ r2 प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाय यही मास है. अब अगर ये देखा जाए ये क्या है, तो यही तो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. differential coefficient of center of position vector of the center of mass will give you the velocity of center of mass. What is this? This is m1. What is this dr1 by dt? It is the velocity of this particle. अगर होगा तो होगा, तो अगर नहीं है तो dr by dt velocity is 0. अगर है तो then you have to write the velocity of this first particle, that's v1 vector plus m2 v2 vector plus so on divided by total mass. That's the answer.
We got the equation for the velocity of center of mass. So velocity of center of mass is given by m1 particle body first into its velocity, body second its velocity, body third its velocity, and divided by total mass of the system. We got the relationship for the velocity of center of mass. Similarly, we can find the acceleration of center of mass. If the body is there around whose center of mass is here, अगर ये बॉडीज जो है जिनका ये सेंटर ऑफ मास है, अगर इन बॉडीज का एक्सेलरेशन है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, तब जाकर इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी एक्सेलरेशन होगा. तो गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ दीज डिफरेंट बॉडीज, अगर इन डिफरेंट बॉडीज का एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उस सूरत में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, तो वो भी हम निकालेंगे. इसी को डिफरेंशिएट करने से हम निकालेंगे. लेट अस डिफरेंशिएट दिस. सो अगर मैं इसको आप डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन, what we get, dvcm by dt is equal to m1, इसका डिफरेंशिएशन dv1 by dt plus m2 differentiation of v2 by dt plus so on, whole divided by the same m, whole divided by the same m. So what should I write? Differentiation of center of mass velocity with respect to time is acceleration of center of mass. That is m1. This. What is dv1 by dt? That is the acceleration of the first body, m1. अगर होगा इसका acceleration a1 plus m2 a2 plus so on, whole divided by m. That's all. ये दूसरा इक्वेशन आपको मिला. तो अगर आपको दिया हुआ है इंडिविजुअल बॉडीज का वेलोसिटी या इंडिविजुअल बॉडीज का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, समझो आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. These two relationships, this and this, very simple, and you can now apply them in real time situations. Okay, now let me go to the examples. Let me go to examples now. Second point. यहां मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं. So x, it is y, okay, and this is, let me suppose z. Here is an object. It moves with velocity v, mass m है. Another object here, it is mass also m. For simplicity, let us put the mass is same and it is velocity also okay. Let me make it 2v, double of this. तो सेंटर ऑफ मास देखा जाए दो बॉडीज का यहाँ है, इस पॉइंट पर होगा, सेंटर में ही होगा क्योंकि दोनों मास सेम है. तो अगर ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है या ऐसे एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, तो बॉडी इज हियर, दिस बॉडी इज हियर, और सेंटर ऑफ मास अब यहाँ चला गया, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करता जाएगा इफ दीज टू बॉडीज मूव. तो हमें देखना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा. हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है. तो क्या किया जाए? तो ठीक है, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड. VCM किसके बराबर लिखूं? ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2. दो ही ऑब्जेक्ट है तो दो ही का लिखना पड़ेगा. अगर तीसरा ऑब्जेक्ट होता तो वी राइट m3 v3 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टोटल मास. ऐसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए क्या दिया है, किस तरह से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन होगा. पहले फॉर्मूला लिखो, फिर देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, गिवन कंडीशन से सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा. अब जरा देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्टिकल समझो, ये सेकंड बॉडी समझो. m, उसका मास m है और वेलोसिटी v है, लेकिन ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर की वजह से इसको, इस v को हमें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. i, x एक्सिस का डायरेक्शन i, और ये j प्लस व्हाट इज दिस m इज 2m. व्हाट इज दिस v2? नहीं, उसका वेलोसिटी भी m ही है.
सॉरी उसका मास भी m ही है, m, तो वेलोसिटी इज 2v और डायरेक्शन साथ में लिखो j क्या जिससे वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस m। ये हमें मिला सबस्टिट्यूट करने से। बहुत ही केयरफुली सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा गिवन सिनेरियो से। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज mv। तो mv कॉमन ही निकालिए आप, इट इज I प्लस 2j डिवाइड बाई 2m। m खत्म हुआ, 2 खत्म नहीं हुआ, 2 को तो रखना पड़ेगा ऐसे। तो VCM क्या है, दैट इज v बाई 2 इंटू I प्लस 2j। यह है आपका वेलोसिटी जो मिला आपको। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा वेक्टर को, अगर आपको वेक्टर अच्छी तरह से आते हो, v बाई 2 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इट इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, गिवन मैग्नीट्यूड पार्ट हियर। लेकिन मैग्नीट्यूड आपको यहां से भी निकालना पड़ेगा, ये तो मैग्नीट्यूड ये तो है ही है, स्केलर पार्ट तो है ही है, लेकिन यहां से आपको इस पार्ट से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज v बाई 2 रूट ऑफ 5। ये है आपका आंसर। अगर डायरेक्शन की बात है, दैट इज थीटा क्या एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, दैट इज tan इनवर्स y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। इसका y कंपोनेंट क्या है, दैट इज 2, x कंपोनेंट क्या है 1। यहां से डायरेक्शन निकालिए, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट डायरेक्शन देता है, दैट इज tan इनवर्स 2। ये वेक्टर से आता है, आपने वेक्टर लिखा कोई वेक्टर तो उसका डायरेक्शन भी उसी से मिलता है और मैग्नीट्यूड भी मिलता है। सपोज आपका वेक्टर है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डायरेक्शन होगा थीटा tan इनवर्स 3/2। मगर दिस इज द एंगल विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, जिसके साथ एंगल ये बनाता है वो यहां डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये तो हो गया, वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट, third point, that is let me give you one more example so that we become very familiar with this. Is an object moving mass m with velocity v. It is object moving, okay, m velocity v. It is one more object here, okay, let me suppose mass again m with velocity, okay, v. It makes suppose 45 degrees here. तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या है। इसका डायरेक्शन तो डिफाइंड है, इसका भी डिफाइंड है, लेकिन इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो v है, तो व्हाट इज द v, व्हाट एंगल इट मेक्स द एक्स एक्सिस, ओके 45, ये एंगल, ठीक, वो करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले फॉर्मूला लिखते हैं सो दैट जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे हमें पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। सो इट इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट है ना, प्लस टोटल मास। चलो m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास, m स्टैंड्स फॉर टोटल मास। सो VCM इज इक्वल टू, हाँ बोलिए जरा, चलो इसको समझो m1, इसको समझो m2, इसको समझो m3। m that is m1 is m, velocity is v, direction is I। दूसरा जो है that is m, उसका वेलोसिटी v लेकिन डायरेक्शन j, प्लस तीसरा है वो भी m लेकिन उसका डायरेक्शन I तो है नहीं, j तो है नहीं। इसका मतलब ये जो v है, ये v, इसके 2 पीसेस कर दो, v cos
v cos 45 I, ये वाला कंपोनेंट और ऊपर वाला कंपोनेंट, प्लस v sin 45j। ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये v क्लियरली डिफाइन तो नहीं है x और y में, इसलिए इसके दो पीसेस कर दिए, यूं एक पीस वेलोसिटी का, ये दूसरा पीस, दोनों पीसेस मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे इस वेलोसिटी v3 के लिए, ठीक, डिवाइड बाय 3m। सो vcm इज इक्वल टू mvi प्लस mvj प्लस mv cos 45 by root 2i प्लस v mv, ये भी 1 by root 2j by 3m। m को हर जगह से कैंसिल किया जा सकता है कॉमन निकाल करके, तो व्हाट इज vcm, दैट इज v को भी कॉमन निकालिए यहां, इट इज i प्लस j प्लस vi by root 2 प्लस j by root 2 by 3, ऐसे कुछ। अब vcm इक्वल टू v by 3, ऐसे i, इन दो का i कॉमन निकालिए, इट इज 1 प्लस 1 by root 2, इन दो को, फिर j को कॉमन निकालिए इन दो को, दैट इज 1 प्लस 1 by root 2, बस दैट इज आंसर। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो v by 3 ऐसे ही, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और रिजल्टेंट जो है थीटा tan इनवर्स दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट, दैट विल बी अगेन 1 अगेन 45। अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए vcm का तो वो सिंपल है, v by 3 तो है ही, रूट किसका, इसका रूट, इसका रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 by root 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 by root 2 का स्क्वायर, ठीक। थीटा निकालना पड़ेगा तो tan इनवर्स व्हाट बाय व्हाट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, दैट इज 1, दैट इज 45 डिग्रीज। ये हुआ एग्जाम्पल इसका। दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। नाउ लेट मी गो टू फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ वन, what we are doing, boys and girls, what we are doing, we are trying to find the velocity of the center of mass. Agar if this velocity of bodies is given, the mass of the bodies and the velocity of the bodies are given, and we are finding the velocity of their center of mass. That's very simple. Fourth, ये एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी u समझो, मास m समझो, और एक दूसरी बॉडी है, इसका मास 2m समझो और इसका वेलोसिटी 0। बताइए सेंटर ऑफ मास इनका होगा कहीं इधर, इधर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, कहीं जाकर के 2m के नजदीक। मुझे इसका वेलोसिटी चाहिए, इसका वेलोसिटी चाहिए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए। तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय टोटल मास m। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, यस, इस m को m1 का क्या लिखूं, m, v1 का क्या लिखूं, u, प्लस m2 का क्या लिखूंगा, 2m, उसका वेलोसिटी क्या है 0, और दोनों का मास ऐड करके 3m हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू, यस, इसका डायरेक्शन i डायरेक्शन ले लो, इट इज m u i by 3m gets cancelled, it is u by 3i। मैग्नीट्यूड क्या है, u by 3, डायरेक्शन क्या है i, सीधे सीधे x डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है थीटा करके, इसका तो डायरेक्शन है ही i का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड u by 3, i के बगैर जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। फोर्थ हो गया। Fourth, fifth, but I must tell you one thing, accelerations also follow the same rules. If you know this acceleration of two bodies, you can get the acceleration of center of mass m1a1 plus m2a2 plus m3a3 divided by sum of the mass. So I don't think that we need to give more examples on acceleration
I should give more examples on velocity and acceleration that follows the same rule. That follows the same rule. Fifth, two bodies of mass 2 kg and 5 kg have velocity of 5 meters per second and I plus 2j meters per second. 2 kg का वेलोसिटी ये है और 5 kg का वेलोसिटी ये है. What is the velocity of their center of mass? Velocity of their center of mass. खूब देख लो अच्छी तरह से, खुद करने की कोशिश भी कर लो. दो बॉडीज है, ये एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी है, इसका वेलोसिटी ये है और इस बॉडी का वेलोसिटी ये है, तो हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए. What should I do? First of all, write down the formula. That is the easiest way you can do initially. Write down the formula. Velocity of center of mass is equal to m1 u v1 plus m2 v2 divided by total mass m. Okay? So velocity of center of mass is equal to, बताइए m1 क्या है? वो 2 है. बताइए इसका वेलोसिटी क्या है? That is 5i. ऐसे कुछ, प्लस m2 क्या है? 5. बताइए इसका वेलोसिटी क्या है? ऐसा लिखना पड़ेगा I plus 2j divided by, what is the sum of the masses? That is 7 kg. 7. It is VCM equal to, it is 10i plus 5i plus 10j by 7. Right? What is VCM again? 10i plus 5 is 15i plus 10j by 7. What is VCM? Yes, that is 15 by 7i plus 10 by 7j. Dividing this 7 to this and this. That's all. हो गया. अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. थीटा निकालना है, tan इनवर्स दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट. ओके, लेट मी राइट. VCM magnitude is equal to root of 15 by 7 whole square plus 10 by 7 whole square. What is theta? That is tan inverse. Theta is the angle which the velocity makes with the x-axis. Theta is the angle which this velocity makes with the x direction, this I direction. That is 10 by 7 divided by 15 by 7. 7 gets cancelled. It's tan inverse 10 by 15. That's 2 by 3. That is all. Sixth example. Sixth example. Sixth example. It's a body here of mass, 2 kg. It accelerates. Let me give the acceleration example. It accelerates with acceleration 10 meter per second square I in the I direction. And there's one more object that is 4 kg. It moves in this direction with 5 meters per second square. Obviously, it is इसका direction है minus I. इसका direction minus I. So, what is the acceleration of the center of mass? m1 a1 plus m2 a2 by total mass m1 plus m2. Now substitute the values. Let me see how do you substitute. कैसे करेंगे? m1 को क्या लिखेंगे? 2. एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? 10i प्लस m2 को क्या लिखना पड़ेगा? m2 के में 4. एक्सेलरेशन उसका -5i डिवाइड बाय m1 प्लस m2, that is 6.
दोनों का मास ऐड करके, this plus this. So it is 20I minus 20J, 20I again, 6. Right? That means 0 by 6, 0. Center of mass will remain at rest. Sorry, the acceleration of center of mass is 0. The center of mass will not get accelerated because of this rule. इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा. इसका एक्सेलरेशन यूं हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है उसका एक्सेलरेशन नहीं हुआ. हाउ डू आई नो? वी गॉट द रिजल्ट 0. The center of mass, the acceleration of center of mass is 0. That is all. Seventh example. Seventh example. The mass m1 is mass m2, and they must have some center of mass somewhere here. Let me suppose this mass goes in the forward direction by distance d. What should be the displacement of this m2 so that the center of mass remains at rest? That's the question. Let me write. What is the displacement? What is the displacement of m2 so that center of mass remains at the same position? क्या करेंगे आप? इसका क्या करेंगे? ये जो बॉडी मूव कर रही है आगे, इस बॉडी को क्या करना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे? दैट इज द क्वेश्चन. बोथ द बॉडीज आर on the x axis. तो ठीक है, what is the center of mass? Suppose xcm is the position of center of mass, that is m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. That is the formula for the position of the center of mass. This is the position of the center of mass on this line. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी के साथ रिलेट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस मतलब बात यह है कि ये बॉडी आगे जा रहा है एंड हैज गॉन डिस्टेंस d. तो ये बॉडी को क्या करना चाहिए? शुड गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है. तो मैं ऐसे कुछ करूंगा, चेंज इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन डेल्टा एक्स सी एम. इस सेंटर ऑफ मास में जो पोजीशन, चेंज इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऐसे लिखा मैंने. इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज, मतलब इसका जो द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा सी एम. तो राइट साइड को भी मैं चेंजेस में लाऊंगा. चेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू m1 चेंज डेल्टा x1 प्लस m2 चेंज डेल्टा x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. मतलब लेफ्ट साइड का जो सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द x पोजीशन, x1 पोजीशन, देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द x2 पोजीशन. Change here is equal to m1 the same change here plus m2 the same change here. It is as good as differentiating both sides or taking the differential from both sides. But the given condition is change in the position of the center of mass is 0. That is given. m1 and change in the position of the m1 mass x1 जिसका coordinate x1 है, that is d, plus m2 ये चेंज निकालना है बाय m1 प्लस m2. ये यहां मल्टीपल के 0 हो गया, सो दैट इज m1d प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0. ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यह मिलेगा डेल्टा x2 इज इक्वल टू, ये शिफ्ट करो माइनस m1 d ऐसे और डिवाइड ये m2 करो. यस, तो इस बॉडी को लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाना है इतना, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है. ये टेक्निक आप सीख लीजिए. दिस वाज द लेक्चर ऑन हाउ टू लुक एट द वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हाउ टू डू दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया. सो यू गो ऑन वाचिंग माय लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब एंड आल्सो डाउनलोड माय ऐप
where there are more questions given, and if you download those questions, and it will give you a lot more practice so that you can pass the examination of maybe NEET or IIT. Thank you.